welcome you all to our channel Regalia, and today our video is on the GB Pant entrance examination, the latest one, which was, I think it was held in the month of July, around the 31st of July. And in this video I'll discuss all the questions, not all questions, but around 50 questions which I had selected, and those are not so easy questions, but these questions not only they are important for this GB Pant MSc entrance examination of the upcoming year, but also these questions will help you excel in various other state entrance examinations like MHCET and BHU entrance examinations and like that. Okay, so it's my request to please watch this video till the end. And now, without wasting much of your time, let's hop into the main contents of the video. So before we move on to the questions, I would like to tell you some interesting facts about Pantnagar examination. Like, first thing is GB Pant examination is held. It is a common MSc entrance examination which is held every year. Secondly, this examination this year it took place on 30th of August, and number of questions, usually there are 200 questions which are asked in the examination. Out of these 200 questions, 50 questions are aptitude questions, and the rest 150 questions are the general agriculture questions. Difficulty level this year, the difficulty levels was easy to moderate, although the options that were asked in the examinations were somewhat confusing, so students found it not very easy, but a moderate examination, while the previous examination was moderate to hard. Okay, now moving on to our question. So the first question is, Arka Komal is a variety of. Okay, so Arka Komal is a variety of, I think so many of the students might be knowing the answers. Okay, so but it will be a revision for you all. So I would like to tell you that Arka Komal is a variety of French bean. Okay, it's a variety of French bean. Now we'll move on to the next question. Bharat is a variety of capsicum, okay, or chili. If in exam, if you will not find capsicum, you can go for chili. Now the next question, Pusa Himani is a variety of. Now it's my request, those if you are attempting these questions, मेरा advice ये रहेगा कि आप लोग screen को just freeze the screen for about 20 to 30 seconds, then try to solve it on your own. उसके बाद आप answers देखिए. Okay, Pusa Himani is a variety of radish. Okay, Pusa Himani is a variety of radish. Now, CDP program, Community Development Program, was launched in the year 1952. Name the biocontrol agent of sugarcane pyrala. तो sugarcane pyrala का जो biocontrol agent है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एपिरिकार्निया. अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हो जाएगी सो आई एम रियली सॉरी. ओके, कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर मुझे बता देना. एपिरिकार्निया मिलानोल्यूका. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, टेंटोरियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ इंसेक्ट. तो इंसेक्ट के किस पार्ट, इंसेक्ट की पूरी बॉडी में हमें टेंटोरियम कहाँ पर मिलता है? तो हमें कहाँ पर टेंटोरियम मिलेगा? हेड रीजन में. ठीक है, हमें हेड रीजन में टेंटोरियम मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ बर्ड ऑफ पैराडाइज. फैमिली ऑफ बर्ड ऑफ पैराडाइज, इट इज एक्चुअली स्टेरिलिजिएसी. ओके, लेकिन पन्नगर के एग्जाम में उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था, उसमें कहीं पर भी स्टेरिलिजिएसी का मेंशन नहीं था. ओके, वहाँ पर एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा था म्यूसेसी. So Sterlitziaceae is a related family to Musaceae in appearance and growth habit. So answer पन्नगर के एग्जाम में आंसर वुड बी Musaceae. Okay, बट अगर एग्जाम में पूछे जाए तो यू वुड गो फॉर Sterlitziaceae. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथूरियम फ्लावर इज स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ. एंथूरियम फ्लावर कितने टेम्परेचर पे स्टोर्ड रहता है?
12 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन का एक एग्जाम्पल जापानीज़ गार्डन। देखिए ऑप्शन तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा बिकॉज जो पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। इसीलिए जो भी क्वेश्चंस मैंने अरेंज करवाए हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने जूनियर्स से, मुझे उतने ही क्वेश्चंस आप मिल पाए हैं और उसमें मैं ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, तो इसका एग्जाम्पल इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया। ब्रीडिंग मेथड यूज टू प्रोड्यूस आइसोजेनिक लाइन्स। नाउ इसका आंसर है बैक क्रॉसिंग। ठीक है, तो बैक क्रॉसिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आइसोजेनिक लाइन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाउंडर ऑफ द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, बीबी मुंडकर। बीबी मुंडकर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट आंसर यही है, बीबी मुंडकर। ओके, मेजर एलिमेंट फाउंड इन मैंकोजेब। तो मैंकोजेब में जो मेजर एलिमेंट है, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। मेजर एलिमेंट विच इज फाउंड इन मैंकोजेब इज सल्फर। ओके, सल्फर इज द मेजर एलिमेंट। 13th, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके काफ़ी एक मतलब पेयर टाइप पे थे। तो इसका आंसर वो होगा पंजाब हरियाणा। ठीक है, पंजाब हरियाणा इज कॉल्ड दी ब्रेड बास्केट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेन एंड स्नो मिक्सचर स्लीट कहते हैं, SLEET, स्लीट। ठीक है, स्लीट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमिनन लीडिंग टू डायर्नल चेंजेस। फिनोमिना विच लीड्स टू डायर्नल चेंजेस, मतलब जब अर्थ होता है तो अर्थ में दो चीज़ें होती हैं। अर्थ, एक तो अर्थ रोटेट करेगा और एक सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करेगा। तो जो डायर्नल चेंजेस यानी सुबह और रात का जो फिनोमिना है वो रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर यहीं पे दिया रहता कि सीजनल चेंजेस बताइए तो आप जाते रेवोल्यूशन के लिए, रेवोल्यूशन अराउंड द सन। बट यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूछा है कि डायर्नल चेंज तो रोटेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अ फंगल क्लासिफिकेशन क्लास, वाई इज अ फंगल क्लास नेम्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। तो क्यों नाम उन्होंने फंजाई इम्परफेक्टाई दिया? इसका सिंपल रीजन है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल स्टेजेस आर एब्सेंट। ओके, यहाँ पे सोमैटोगैमी से ही काम चलाना पड़ता है इन लोग को। सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज करके प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर कोई सेक्सुअल बॉडी नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओके, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, organisms that usually feed on dead and decaying organic matter but become parasitic under certain conditions। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रवृत्ति, जिनका नेचर जो है, उनका नेचर कैसा है कि वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, वो सेप्रोफाइट, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस आ सकते हैं, इसमें पैरासाइट हो सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सब कुछ वोकैबुलरी का खेल है। देखिए, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव का जो लिटरल मीनिंग है वो है टेंडेंसी टू। ठीक है, टेंडेंसी टू। अब क्या होता है, अब आप इसको पढ़ो, फैकल्टेटिव पैरासाइट, टेंडेंसी टू बी अ पैरासाइट। ठीक है, तो यही बात है कि इनकी टेंडेंसी है कि वो पैरासाइट बन सकते हैं। ठीक है, ओके, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि परसेंटेज फॉस्फोरस कितना होता है एक डीएपी के फर्टिलाइजर में। तो डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब इस जो डाई अमोनियम फॉस्फेट के फर्टिलाइजर में कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज आपका फॉस्फोरस का होता है? इसका आंसर होगा 46%। ठीक है, कितना होगा? 46%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज फॉस्फोरस, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया, 46% ही होगा इसका आंसर। ओके, अगला देखते हैं। परसेंटेज पोटेशियम
इन एमओपी। तो एमओपी में कितना परसेंटेज पोटेशियम होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 60%। ठीक है। परसेंटेज नाइट्रोजन इन एनहाइड्रस अमोनिया कितना होगा? 82%। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। सुंडा में सब मिलेगा आपको, सुंडा हो गया, कात्यान हो गया, इसमें सब अवेलेबल है, कोई इशू नहीं होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन से, ठीक है, एंड प्रोटीन, दोनों चीज़ों से बना होता है। तो प्लीज़ कोई कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ काइटिन से। इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ काइटिन एज वेल एज प्रोटीन। चलो अगला। TNV सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले TNV सिस्टम कौन से कंट्री में आया था? तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सुंडा में भी मिल जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है टर्की। ठीक है, तो टर्की ऐसी कंट्री, इसमें TNV क्या होता है? ट्रेनिंग एंड विजिट। ओके, ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट, TNV सिस्टम। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। PPVNFR, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है वो कौन से साल में इनेक्ट किया गया था? कौन से साल में उसको लाया गया था? उसको लाया गया था 2001 में, PPVNFR एक्ट 2001, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? DPPQS। DPP क्या है भाई? DPPQS क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन, स्टोरेज। इसकी लोकेशन कहाँ पे? इसकी लोकेशन है फरीदाबाद। ठीक है, ये फरीदाबाद में है लोकेटेड है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैटिस्टिकल डिजाइन विच इज यूज्ड टू इवेलुएट अ लार्ज सेट ऑफ जर्म प्लाज्मा। ऐसा कौन सा डिजाइन देखा आपने? स्प्लिट प्लॉट देखा होगा, पढ़ा होगा, लैटिन स्क्वायर पढ़ा होगा, RBD, ये सब अभी यूजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मास्टर्स में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो कि लार्ज सेट ऑफ जर्मप्लाज्म को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आंसर है ऑगमेंटेड डिज़ाइन। ओके, ऑगमेंटेड डिज़ाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ रस्ट इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा साउथ टू नॉर्थ। होता क्या है कि जो रस्ट होता है उसका ओरिजिन यूजुअली क्या होता है? नीलगिरी हिल्स ऐसे जाता है रस्ट। केसी मेहता का अगर आपने HC रूबे देखना आप, उसमें रस्ट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। उसमें केसी मेहता ने जो रिकरेंस ऑफ रस्ट बता रखा है उसमें यही है कि रस्ट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है। यहाँ पे जो नीलगिरी हिल्स होती हैं, नीलगिरी हिल्स से आएगा और फिर इधर नॉर्दर्न प्लेन्स पे आके अफेक्ट करेगा, स्पेशली ब्लैक रस्ट का आप देखना। तो साउथ टू नॉर्थ इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नर्सरी डिजीज। अब ऑप्शंस तो नहीं है मेरे पास, बट आपको पता है कि नर्सरी डिजीज कौन सा होता है? डैम्पिंग ऑफ, ऑब्वियसली, है ना। किससे होता है? पीथियम से होता है, डैम्पिंग ऑफ पीथियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन डिस्टेंस इन चिली। चिली में कितना फाउंडेशन डिस्टेंस होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, 400 मीटर्स, 400 मीटर, ठीक है, का फाउंडेशन डिस्टेंस होता है। फाउंडेशन सीड हम प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें हम कितना डिस्टेंस रखते हैं, यही पूछ रहा है। प्रोसेस थ्रू विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल। मतलब कोई इनोवेशन है, हमें उसे कम्युनिकेट करना है थ्रू वेरियस चैनल्स, लाइक टेलीविजन हो गया, वेरियस वेरियस चैनल्स। तो जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। सॉइल टाइप कॉमनली फाउंड इन तराई रीजन। तो कौन सा सॉइल मिलता है यहाँ पे? मॉली सॉइल, मॉली सॉइल मिलता है ना। मॉली सॉइल इज द सॉइल टाइप, और शायद ये सबसे कॉमन सॉइल टाइप भी है। एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, बट शायद यही इसका आंसर है। सबसे कॉमन टाइप भी यही होता है, मॉली सॉइल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 ग्राम पर cc। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन स्पीशीज ऑक्यूपाइंग मैक्सिमम एरिया। जी हिरसुटम। तो जी हिरसुटम जो स्पीशीज है ये मैक्सिमम स्पीशीज होती है। कई टाइप के कॉटन होते हैं, जी आर्बोरियम आपने पढ़ा होगा एक, ठीक है ना, ऐसी जी हिरसुटम भी होता है। तो इस टाइप से होता है, लेकिन जी हिरसुटम जो है वो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्यूपाई करता है एरिया इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। ठीक है, ब्रैग एंड क्लार्क आर वेराइटीज़ ऑफ। कौन से क्रॉप की वैरायटी है? सोयाबीन की। ये इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ थी, बाहर से आई थी, सबसे पहले यही लगाई गई थी इंडिया में। सोयाबीन की वैराइटीज़ है ब्रैग एंड क्लार्क।
क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट की क्रिटिकल स्टेज को क्या बोलते हैं? दैट इज CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। डेड हार्ट सिम्टम्स ऑन प्लांट इंडिकेट द अटैक ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है तो येलो स्टेम बोरर, सब सुंडा में मिलेगा। सॉरी, येलो स्टेम बोरर, सुंडा, कात्यायन, इन्हीं में है, इन्हीं से पेपर आया था इस बार। चलो, आइडेंटिफाई द ब्रॉड लीफ वीट। आइडेंटिफाई क्या करना है हमको, पता ही है ब्रॉड लीफ इसमें से कौन सा होता है। ब्रॉड लीफ एक्चुअली वीड नहीं था, ब्रॉड लीफ वीडिसाइड था, तो उसका आंसर होगा 2,4D। ठीक है, ब्रॉड लीफ वीडिसाइड था, सॉरी वो वीड हो गया, 2,4D था, 2,4D पढ़ा ही होगा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन। पॉइंटेड गार्ड्स कैसे प्रोपोगेट किए जाते हैं? वाइन कटिंग्स के थ्रू। ठीक है, वाइन कटिंग्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेकिन ये भी बहुत जगह पूछा गया, बट फिर भी अच्छा मान सकते हो उसका, वाइन कटिंग। स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक सेल, दो सेल, बीच में क्या आता है? ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल स्टार्टेड वर्किंग ऑन पी इन द ईयर, कौन से ईयर में मेंडल सर ने अपना काम शुरू किया था, मेंडल साहब ने? तो वो किया था उन्होंने 1857 में, 7 साल काम किया, 1864 तक। ठीक है, 1864 तक काम किया उन्होंने। 1865 में पेपर लिखा, 66 में उसको प्रेजेंट किया था ब्रन सोसाइटी में। ठीक है, तो ये इसकी पूरी चेन है, लेकिन अब 1857 अभी जो आपका काम का है वो यही है। चलो आगे बढ़ो। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, बहुत ईजी है, वीट एंड राई, वीट एंड टू राई। काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे इस बार के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम है ना, वो किसने लॉन्च किया था? कौन सी संस्था ने लॉन्च किया था? इट वाज ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। अगला क्वेश्चन। पूसा सदाबहार वैरायटी कौन से क्रॉप की है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, टोमेटो भी होती है, चिली भी होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो आप यू शुड गो विथ टोमेटो नॉट चिली, अगर दोनों मिले तो। वैसे नहीं मिलेंगे, इस बार मिल गए थे दोनों, तो टोमेटो को प्रेफर किया गया। ठीक है, सो आंसर विल बी टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पंत शुभ्रा जो है वो कौन से क्रॉप की वैरायटी है? पंतनगर की वैरायटी रिलीज हुई है, कॉलीफ्लावर। यार पेन कलर चेंज करेंगे, अगले क्वेश्चन बोरिंग हो रहा है। कॉलीफ्लावर, ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल कलर रखते हैं, रेड रख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉप दैट इज मैक्सिमली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एक्चुअली वेजिटेबल क्रॉप था, वेजिटेबल, यहाँ देख लीजिएगा, वेजिटेबल क्रॉप विच इज मैक्सिमली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अनियन बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है, कांदा। ओके। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये पब्लिश हुई थी, पहली एडिशन हुई थी 1964 में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? सीड रेट ऑफ टोमेटो इज 300 to 400 ग्राम्स पर हेक्टेयर। ओके, 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। ऑप्टिमम पीएच ऑफ जेली 3.2, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, 3.2। ओके। परसेंटेज नाइट्रोजन एप्लीकेशन इन फ्रेंच बीन 13 kg पर हेक्टेयर। देखिए ये सब क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाने चाहिए, परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज, क्योंकि दिस इज़ अ वेरिएबल फैक्ट, मतलब ये एक्चुअली वेरी करता रहता है क्लाइमेट, सॉइल टाइप के हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए मेरी कंसिडरेशन, सीड रेट के भी नहीं बनने चाहिए। तो 13 kg पर हेक्टेयर है, मैंने अंग्राऊ को रेफर किया है इसके लिए, और अगर आपको कुछ और मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, परसेंटेज फॉस्फोरस एप्लीकेशन इन पोटैटो। तो फॉस्फोरस एप्लीकेशन क्या है? 60 to 80 kg पर हेक्टेयर होता है, चेंज होता रहता है, वैसे डिपेंड करता है वैरायटी टाइप में, इन सब चीज़ों में, तो लेकिन हम मानते हैं 60 to 80 है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके बाद, मैं लिख देता हूँ थैंक यू, है ना, और थैंक यू, और कहने की तो ज़रूरत नहीं है, लाइक कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, है ना, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, वो तो कहने की बात ही नहीं है ना।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब, जो आपको अच्छा लगे करो, डिसलाइक करना डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है, कमेंट करना कमेंट करो, बट कुछ करो, है ना, क्योंकि बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर अ वीडियो लाइक दिस. सो okay, thank you everyone, and I'll meet you in the next video. Bye bye.